سب سے پہلے بات کریں گے کامیڈی کنگ عمر شریف کی، جو کہ جرمنی میں انتقال کر گئے۔ عمر شریف دل اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ کئی ہفتوں تک کراچی میں ہی زیر علاج رہے۔ حالت نہ سنبھلنے پر انہیں امریکہ منتقل کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا گیا تھا، جس میں سندھ حکومت نے بھی معاونت کی تھی۔ عمر شریف ایئر ایمبولنس پر علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، تاہم طبیعت خراب ہونے پر انہیں جرمنی کے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں کچھ روز وہ زیر علاج رہے۔ لیجنڈ کامیڈین عمر شریف نے 14 سال کی عمر میں اسٹیج اداکار کے طور پر کریئر کا آغاز کیا اور کئی دہائیوں تک اسٹیج پر راج کیا۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جرمنی سے ہمارے نمائندہ اصغر مرزا موجود ہیں۔ اصغر، یہ کہیے گا کہ اب تک ان کے لواحقین کا بیان کیا ہے کہ واپسی کے لیے انتظامات کیا کیے گئے؟ جی بہت شکریہ۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے جو دنیا بھر میں ان کے مداحوں کو آج افسردہ کر گئی۔ اس وقت ہماری بات ہوئی ہے قونصل جنرل فرینکفرٹ جو زاہد حسین، جو گزشتہ 4 دنوں سے فرینکفرٹ سے روزانہ معین اشرف عمر صاحب کی عیادت کے لیے فرینکفرٹ سے نیورنبرگ جاتے اور ان کی وائف کو روزانہ کی بنیادوں پر ملتے۔ آج تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی ڈیتھ کے بعد جو انتظامات ہیں میت کی پاکستان روانگی کے، وہ ہم کر رہے ہیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا وہ ہم کر کے ان کی میت جو ہے وہ پاکستان روانہ کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ اصغر مرزا، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کو امریکہ منتقل کیا جانا تھا، لیکن راستے میں طبیعت بگڑنے کی بنا پر انہیں جرمنی کے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ گلوکارہ حمیرہ ارشد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ حمیرہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیے گا، عمر شریف ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ کی ان سے ملاقات رہی، ان کی طبیعت کے بارے میں آپ کو علم تھا، کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلے تو بہت ہی افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کی تمام فیملی کو اللہ صبر دے، اور ان کے جتنے فینز ہیں وہ بلکہ پوری دنیا میں ہیں۔ اور ہمارا بہت زیادہ نقصان ہے پاکستان کا کہ ایسے لیجنڈری جو لوگ ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ایک الفاظ جیسے آپ نے کہا کہ کم پڑ گئے ہیں، لیکن ایک چیز کا میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح وہ یہاں پہ پاکستان میں ہاسپٹل میں پڑے رہے اور درخواستیں کرتے رہے کہ ان کو امریکہ بھیجا جائے، اور پھر انڈیا کے جو کچھ فنکار ہیں انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کے تو ریکویسٹ کی پاکستانی گورنمنٹ سے کہ چاہے وہ سندھ کی ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہے یا جہاں کی بھی ہے، انہوں نے ریکویسٹیں کی کہ جی ان کو امریکہ بھیجا جائے، اور پھر کہیں جا کے جو ہے ان کا امریکہ کا انتظام ہوا۔ اگر یہی انتظام پہلے ہو جاتا تو شاید وہ بچ جاتے، اور ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ کیا رواج ہے، وہ تو جو ہونا تھا وہ تو بہت ہی دلی افسوس ہے ہماری پوری انڈسٹری کے لیے، چاہے وہ سنگنگ کی ہے، چاہے وہ ایکٹنگ کی ہے، یا کوئی بھی انڈسٹری ہے، بہت ہی زیادہ ہم سب کا یہ لاس ہے۔ لیکن جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کے لوگوں سے ریکویسٹیں کی کہ ان کو باہر بھیجا جائے، بھئی وہ ایک بہت بڑے فنکار ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی فنکار، اگر کسی کے ساتھ بھی ہمارے ایسے جو فنکار ہیں جو ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، اگر ان کے ساتھ کل کو خدا نخواستہ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے انڈسٹری کے لیے بہت بڑا لاس ہے، اور انڈسٹری کے اگر کسی اداکار فنکار کی حالت خراب ہوتی ہے یا مالی طور پر حالت خراب ہوتی ہے تو حکومت کو خاص توجہ دینی چاہیے، یہ آپ کا سٹینس ہے۔ حمیرہ صاحبہ ساتھ ہی رہی گا، ہمیں اسی بیچ جوائن کر چکے ہیں گلوکار جواد احمد صاحب۔ جواد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جواد صاحب، ایسا فنکار جس کے فن کی کوئی سرحد نہیں تھی، آپ نے ان کے فن کو کیسا پایا؟ میں بہت ہی سمجھتا ہوں افسوس و دکھ کے ساتھ آج پورا دن گزاروں گا، کیونکہ میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں شوز کیے ہوں اتنے پچھلے 22-23 سال میں۔ میں جب جوپٹرز میں تھا تو اس کے بھی 1-2 سال میں نے ان کے ساتھ میرا رابطہ جب ہوا پہلی دفعہ، تو اسٹیج پہ پہلی دفعہ جب وہ مجھے ملے تو میرا خیال ہے کراچی کی یہ بات ہے، وہاں پہ یہ فنکشن ہوا، تو مجھے یاد ہے میں نے ان سے کہا کہ عمر صاحب، وہ مذاق کر رہے تھے ہر ایک کے ساتھ، وہ ان کا ایک اسٹائل تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا اسٹیج پہ اس کو بلاتے تھے، تو مجھے یاد اچھی طرح کہ میں نے ان سے کہا عمر صاحب، میں
थोड़ा संजीदा आदमी हूँ, तो मेरे साथ ज्यादा मजाक ना करें अगर आप इस तरह कर सकें। तो उन्होंने मेरे साथ पूरी जिंदगी इसके बाद कभी कोई इस तरह की बात नहीं की, मजाक नहीं किया। ये बहुत बड़ा पन था उनका, हालांकि वो कॉमेडियन थे और उन्होंने लोगों को हंसाना होता था। तो मेरा उनके साथ इसलिए भी अच्छा एक ताल्लुक था कि मुझे कहते थे कि मेरा जो बेटा है उसका नाम भी जवाद है, तो मेरे से खास किस्म का प्यार करते थे, बड़े इज्जत और एहतराम का रिश्ता था मेरा उनके साथ। दूसरी बात जो भी हुमैरा करी थी, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जहाँ गरीब आदमी पे महंगाई और गुर्बत तोड़ी जा रही है आम लोगों पे, और लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो गया है, मुश्किल हो गया है, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो सैकड़ों हजारों के नालों में रहते हैं, हमें सोचना चाहिए कि हमें इन हुक्मरानों के साथ कब तक रहना है। तो ऑफ कोर्स आर्टिस्ट भी इसी मुल्क के हैं। अगर आम इंसान के साथ ये हो रहा है तो एक बड़ा आर्टिस्ट भी जो है उसके साथ भी हो सकता है जो उनके साथ हुआ। और मैं समझता हूँ कि अभी एक दफा तो आपको याद होगा हजारा के जो लोगों ने जब एहतजाज किया तो वहां तक नहीं गए प्राइम मिनिस्टर, तो उमर शरीफ के सामने में भी उन्होंने 3, 4, 5 दिन का डिले किया और इनके लोग आके कहते रहे कि ये इस तरह है, और ये बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, पॉलिटिशियन तो बाद में हूँ ना, मेरी असल पहचान तो मौसीकी है और शोबिस है। तो मैं तो बहुत ही अफसोस के साथ आपको ये कहता हूँ कि जब ये खबरें चल रही थी तो मुझे यकीन नहीं आता था कि ये हो सकता है उमर शरीफ के साथ, क्योंकि उन्होंने जितना इस मुल्क के लिए चाहे सोशल वर्क हो, चाहे कोई किसी किस्म का, हमारे मुल्क में बहुत से फनकार ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर दी, लेकिन जो आखिरी अय्याम थे वो कसम पुरसी में गुजारे। तो उम्मीद यही करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान मजीद ताउन भी करेगी। जवाद साहब, आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि आपका करीबी ताल्लुक भी था उनसे, तो आप क्या समझते हैं कि जूनियर आर्टिस्ट के साथ उनका रवैया कैसा होता था? बहुत अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो एक ऐसे इंसान थे कि स्टेज के ऊपर और स्टेज के पीछे वो एक तरह का मिजाज था उनका। मैंने अभी ट्वीट भी किया इसके ऊपर, यही बात मैंने की है कि उनके जो आम गुफ्तगू होती थी जो लोगों के साथ करते थे, मैंने बड़ा उनके साथ क्योंकि बैठा हूँ, हम टूर से भी गए हैं, मुल्क से बाहर भी गए हैं, वहाँ पे होटल में भी इकट्ठे रहे हैं, नाश्ते भी इकट्ठे किए हैं, खाने भी इकट्ठे खाए हैं। तो वो जो उनकी गुफ्तगू थी इतनी हाजिर जवाबी थी उनके अंदर कि वो छोटी सी छोटी चीज के अंदर से मजाक का एक पहलू ढूंढ लेते थे। और ये चीज मैंने इन 3 लोगों में देखी है, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब और अमानुल्लाह खान साहब, और वो तीनों में नहीं है। मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इन तीनों से महरूम हो गया है। बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे, अदारे थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको अपनी सुकून मिले और उनके जो सोगवारान हैं, उनके जो अहले खाना, तमाम कौम जो है, उनको भी सब्र जो है वो मिले। मेरी तो यही दुआ है। हुमैरा साहिबा साथ ही मौजूद है? हुमैरा साहिबा साथ मौजूद नहीं है। जवाद साहब, जिस तरह के हम जिक्र कर रहे हैं कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, उन्होंने हिंदुस्तान में भी लोगों के दिलों में घर किया, और एक वक्त वो था कि नौजवान नस्ल को ये नहीं पता था कि उमर शरीफ साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है या हिंदुस्तान से है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा फनकार जो ये ना साबित कर पाए कि वो कहाँ से है, ये उसकी कितनी बड़ी जीत होती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उमर शरीफ जो हैं वो एक बड़े सगीर के बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन। उन्होंने उनको हंसा के उनके पेट में दर्द कर दिया। उन्होंने खुद ये कहा, ये उनके अपने अल्फाज हैं, कि एक स्टेज पे पहली दफा उन्होंने उमर शरीफ को देखा। वो वहाँ गए हुए थे कि एक इंडिया और पाकिस्तान का इकट्ठा एक शो हो रहा था, तो उसके अंदर इन्होंने जो किया वो पूरे, आप उसकी कभी वो क्लिप देखे, मैंने देखा हुआ है कि इंडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म का मजाक है और किस तरह किस्म का मजाक है कि जो कि नेचुरली एक आदमी के अंदर से निकल रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो जो होती है ना वन मैन शो वाला जो मामला होता है कि एक स्टेज आर्टिस्ट अकेला खड़ा होकर पूरे ऑडियंस को पकड़ लेता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है। बिलाशुबा उनकी शख्सियत ही ऐसी थी जिन्होंने बहुत से दिलों पर भी नक्श किया और जहनों पर अपनी छाप भी छोड़ी है। जवाद साहब साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं गुलकार अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब। ईसा खिलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अताउल्लाह साहब, जिस तरह के हम जिक्र कर रहे हैं उमर शरीफ साहब का, एक बेताज बादशाह कॉमेडी का आज इस दुनिया से रुखसत हो गया है। आप क्या समझते हैं कि वो मुस्कुराहटें बिखेरने वाले ने आज किस हद तक रंजीदा किया है? कुछ कह नहीं सकता इस वक्त जो सूरत हाल है। अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे। मैंने 20-25 साल उसके साथ काम किया, मुल्क में किया, मुल्क से बाहर किया। जो
जितना बड़ा कॉमेडी था उतना खूबसूरत इंसान था वो। अल्लाह ताला उसकी मंजिलें आसान करे, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उसे। और अताउल्लाह साहब, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, जवाद साहब के 3 बड़े नाम थे कॉमेडी में पाकिस्तान के, मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह साहब और उमर शरीफ साहब। अब तीनों हम में नहीं रहे, तो आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री में कितना बड़ा खला पैदा हो चुका है इस वक्त? जवाद भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब हम में कोई इतना खूबसूरत हंसाने वाला बंदा नहीं रहा। सही। अताउल्लाह साहब साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं अदाकार रऊफ लाला साहब। लाला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाला, आपने बड़ा वक्त गुजारा उमर शरीफ साहब के साथ, आपने बेशुमार शो भी किए, आपकी उनसे करीबी वाबस्तगी भी थी। आपने उन्हें फनकार के अलावा इंसान बड़ा कितना पाया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा उनका साथ वो 75 में है और मैं 77 में। बेशुमार ड्रामे किए और एक ही साथ हमारा ड्रामा सुपर हिट हुआ था 89 में बकरा किस्तों पे, तो हमने पूरी दुनिया का दौरा भी एक साथ पोस्ट किया। काम तो बहुत किया उमर भाई के साथ, सब उनको उस्ताद कहते थे, लेकिन हमेशा मैंने उनको मुर्शिद कहा है और वो मेरे मुर्शिद थे, उनसे मेरा रूहानी ताल्लुक भी था। तो मतलब हम तो कराची में एक साथ जब वो होते थे कराची, तो शाम 6 बजे बुला लेते थे, तो सुबह 6 बजे हम फारिग होते थे। उनके पास बैठना, खाना पीना, ये वो, तो बड़ा प्यार करते थे। मिठाई का इनको गुलाब जामुन का शौक था, वो कभी कभी खाते थे ना, तो वो चोरी छुपे खाते थे। तो मैं कहता था उमर भाई आप ना खाया करें, आपको शुगर है। ये तो कह रहा ये शुगर फ्री है। मैंने कहा नहीं, ये शुगर फ्री नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप खा रहे। तो बड़ा मजाक करते थे हम लोग आपस में बैठ के, और बड़ा वो यादें। मैं तो खैर इनके साथ मतलब है कि बहुत ड्रामे किए हैं, और बड़ा हर जगह घुमा हूँ, रूमेट रहा हूँ, इनके रूम में रहा हूँ, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी दुनिया के हिस्से में। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी। और इंसान तो ऐसे थे कि शॉपिंग के लिए उमर भाई जाते थे, मैं चला जाता था साथ में, तो मैं उनको उनकी शॉपिंग से पहले अपनी पैंटें शर्टें खरीद लेता था। तो कहते था अभी मैंने तो पसंद नहीं किया और तूने खरीद लिया। मैं कहता था भाई मुझे कौन सी पेमेंट करनी, पेमेंट तो आपने करनी है, मेरे को तो वजन उठाना। तो बहुत मासी मजाक और प्यार मोहब्बत वाले आदमी थे। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर के लिए हसीन भी होती हैं, आपके चेहरों पर खुशियां भी बिखेरती हैं, लेकिन उनके चले जाने का जो गम है वो जिंदगी भर भुला नहीं पाया जाता। अदाकारा मीरा जी ने हमें ज्वाइन किया। मीरा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीरा जी, कहिएगा कि आपने उमर शरीफ साहब को कैसा पाया, और आप क्या समझती हैं कि इस फन की दुनिया के अंदर वो कितना बड़ा नाम था और उनका खला कितने अरसे तक पुर नहीं हो सकता? कीजिए, प्लीज होल्ड ऑन। मीरा जी से राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज एक बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की कॉमेडी इंडस्ट्री का। फ़न की दुनिया का बेताज बादशाह उमर शरीफ आज इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। रऊफ लाला हमारे साथ ही मौजूद हैं। रऊफ लाला, बात करते हैं असलूब के हवाले से। आपने दौरे हाजिर का असलूब भी देखा है, जो कॉमेडी का असलूब है, लोगों को हंसाने का जो अंदाज है। दौरे हाजिर का मिज़ा और उमर शरीफ का मिज़ा, कितना फ़र्क देखते हैं उसमें? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। ये जब तक मतलब है कि हम कॉमेडी होती रहेगी दुनिया में, तो उमर भाई की कैसेट आज भी 30 साल बाद भी उठा के देखो तो लोग हंस के पागल हो जाते हैं। और आने वाले 30 साल 50 साल तक भी ये कॉमेडी उमर भाई वाली जो है वो ऐसे रहेगी। ये एक्सटेम्पोर, ऑन द स्पॉट और जुमलेबाजी, ये वही आइटम कर रहे हैं आज के लोग भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया, आपको पता है। लेकिन उमर भाई का जो अंदाज और वो कॉमेडी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। हमें बेशुमार जगहों पे लोगों ने ये कहा जब हम गए कि आप वही है ना जो उमर शरीफ के साथ ड्रामे में। तो इसका मतलब है उमर शरीफ एक सदी का नाम है, एक कॉमेडी में एक वो नाम है जो मतलब लोग सारी जिंदगी जब तक हम जिंदा है तो उनका नाम लोग सुनते रहेंगे, और इनकी कैसेटें देख के, इनके ड्रामे देख के लोग एंजॉय करते रहेंगे। मैंने देखा अमेरिका में एक शख्स आया था, उमर भाई से कहने लगा यार आपके ड्रामे देख देख के मेरी वालदा ठीक हुई है। तो भाई तो उन्होंने तो वो काम किया जो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में तो बहुत आर्टिस्ट हैं करने वाले, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक वो एक अलग ही नजर आता है ना जो चीज,
وہ تھے اور ہم سب ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے آج اپنے بچوں کی روٹی کما رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہٹ ہوئے ہیں، اللہ کا شکر. اور میں لالا جب انسان عروج کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ شخصیت کے اندر بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصیت جو کریئر کے سٹارٹ پہ تھی اور جو کریئر کے آخر پہ تھی، اس میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ آرٹسٹ تو ماشاءاللہ تھے ہی تھے بہت بڑے، پھر ان کی ڈریسنگ، ان کا پہننا اٹھنا، تو ایک بندہ جو مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ آیا ہے تو اس کا اسٹائل تھوڑا سا، تو پھر لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ایسا نہیں پایا. ہم نے 40 سال ان کے ساتھ کام کیا، 45 سال ہم نے ان کو پیار کرنے والا، یعنی مزاح کا اسلوب بھی بہترین اور شخصیت کا مزاج بھی بہترین تھا، اور وہ کامبو تھے اس چیز کے. رؤف لالا ساتھ ہی رہی گا. میرا صاحبہ ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکی ہیں. میرا جی، عمر شریف صاحب کی جو اس وقت ان کے جانے کی خبر ہے، کیا سمجھتی ہیں کتنی رنجیدہ کر گئی ہے اور انڈسٹری کو کتنا بڑا نقصان ہوا؟ ان کی جانے کی خبر جنگل کی آگ کی مانند پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، الفاظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن افسوس جب آرٹسٹ زندہ ہوتا ہے تو پوچھنے والا نہیں ہوتا، جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے کچھ پوچھنے بھی نہیں جاتا. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر صرف گھر والے، جو آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، وہ اتنا میڈیا کے ساتھ ان کی ایسوسیشن نہیں ہوتی یا ان کا رابطے میں نہیں ہوتے. وہ لوگ میڈیا انڈسٹری کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے نہیں ہیں، اس طرح سے فون بھی نہیں اٹینڈ کرتے. اور یہ تو وہ اثاثے ہیں جن کو بہت ہی محبت اور کیئر اور ایک ادارے کی ضرورت ہے. کہ جب آرٹسٹ بیمار ہو جاتے، جیسے عمر شریف صاحب جب بیمار تھے، جب وہ تکلیف ان کی شروع ہوئی، تب سے ان کا علاج کرنا چاہیے تھا. کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں پہ سارے آرٹسٹ شام کو اکٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، ان کے آفیسز ہوں. جس طرح سے آپ ہاسپٹلز بناتے ہیں، جیسے آپ ایویشن انڈسٹری کے آفیسز بناتے ہیں، آرٹسٹوں کے لیے ایسے اس طرح سے ادارہ کیوں نہیں بناتے آپ لوگ؟ یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو بہترین احتیاط کے ساتھ فنکاروں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ڈیموکریٹک لیڈر طاہر جاوید نے سینیٹر وان ہولن کے ساتھ اس متنازع بل کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی، جس سے ریپبلکن سینیٹرز نے افغانستان انسداد دہشت گردی نگرانی اور احتساب ایکٹ کے عنوان سے پیش کیا ہے. بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے ممالک اور افراد جو 2001 سے 2021 تک طالبان کی حمایت کرتے رہے ہیں، ان پر پابندیاں عائد کی جائیں. What I would like you to say a few words about this. Earlier, what we talked about this the bill. A few Republican senators brought yesterday, which is pretty much a rush job, as you and me both understand. And they are demanding some inquiries for 20 years of war, which is pretty normal. We all understand that after war, you wanted to do some inquiries, you wanted to know what went wrong and where went wrong and all that. There's nothing wrong with that. But there are a few concerns are there that they are asking that to be happen in 180 days. I mean, how is going to be possible to have a right report in 180 days and then turn around? They only used one country's name in it, which is Pakistan, that the inquiry should be, I would say, inquiry should be added everybody, including Pakistan and whoever else are there. So since there is no Democrat on the bill, so I would realize that obviously they could not convince any of the Democrat senator to join as a co-host. So that tells me that they are not 100% on board. So there's nothing much to worry about. But there's a big panic in the Pakistani American community here since yesterday. So many of them called around and asked so would you spread some, is there anything, I mean, obviously this is going to get amended down the road. If some Democrat will join, they will have their take in it.
and whatnot. So what do you would say about it? Everybody should understand, and we need to make sure we explain to, not just people in our communities here in the United States, but to folks in Pakistan, that any member of the Senate can introduce any bill anytime. That doesn't mean that it's going to be enacted into law. I have not read this bill, but I have read reports about this bill. And as you say, because bills are introduced every day, but this one obviously has understandably created concern in the Pakistani American community and in Pakistan and other places. We should, in my view, undertake a review of U.S. involvement in Afghanistan over the last 20 years. And we have asked, we'd like to conduct hearings in the Senate Foreign Relations Committee to do that, not just to look at the last 2 weeks and the evacuation, but decisions made all along the way in Afghanistan, because as I think everybody has seen and read, there were many people in the Pentagon who over the years did not believe that continued levels of increasing U.S. forces would in fact. गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली के साबिक सदर फाहद चीमा की पाकिस्तान में तैनात अतालवी सफ़ीर से मुलाकात। पाक फेडरेशन इटली की जानिब से इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को फैमिली वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक दरपेश मसाइल को अतालवी सफ़ीर तक पहुँचाया। अतालवी सफ़ीर ने अतालवी सिफारत खाने की तौसी के बाद जल्द मसाइल हल होने का यकीन दिलाया। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। इटली में मौजूद 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान में मौजूद अतालवी सफारतखाने में फैमिली वीज़ा और दस्तावेज़ात की तस्दीक में मसाइल का सामना है। पाक फेडरेशन इटली की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली के वज़रा और गवर्नर पंजाब से मुसलसल राब्ते के बाद इस्लामाबाद में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और तहरीक इंसाफ इटली के साबिक सदर फहद चीमा ने अतालवी सफ़ीर आंद्रिया फेरारे से मुश्तरका और बाहमी मुलाकात की। यह मुलाकात गवर्नर हाउस लाहौर में हुई, जहाँ अमले ने अतालवी सफ़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब और फहद चीमा ने अतालवी सफ़ीर से पाकिस्तानी कम्युनिटी को अतालवी सफारतखाना में दरपेश मसाइल और उनके हल के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। आज मेरी मीटिंग फहद चीमा साहब के साथ हुई है और उन्होंने मुझसे इटली के मसाइल के बारे में बात की है और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है जब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे पास आते हैं और आकर हमें ये बताते हैं कि हमारे जो सफ़ीर पाकिस्तान हैं एम्बेसी इटली के जनाब जौहर सलीम साहब और जो हमारे कौंसल जनरल डॉक्टर मंजूर चौधरी साहब हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और फहद हुसैन चीमा ने तवील मुद्दत से पाकिस्तानी कम्युनिटी को जारी फेडेक्स जैसे मसाइल से होने वाली तकालीफ से आगाह किया, जिस पर अतालवी सफ़ीर ने मसला के हल के लिए भरपूर यकीन दहानी करवाई और बताया कि सफारतखाना की इमारत की तब्दीली के साथ साथ कुछ और तब्दीलियाँ भी की जा रही हैं जो अगले चंद हफ्तों तक बहुत वाज़ेह नजर आएंगी। अतालवी सफ़ीर ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले अतालवी सफारतखाना 40,000 मीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल था, जबकि तोसी के बाद इसका रकबा 11,000 मीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल होगा, जिससे मसाइल पर काबू पाने में काफ़ी मदद मिलेगी और कम्युनिटी पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर तौर पर सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेगी। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, इटली। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के इलाकाई रहनुमाओं का दूसरा फोरम 28 से 30 सितंबर तक रूस के शहर चेलियाबंस्क में मुनक्किद हुआ, जिससे पाकिस्तान से 6 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। पाकिस्तानी वफ़द ने फोरम के तमाम सेशंस में शिरकत की और फोरम के मुकम्मल सेशन से खिताब किया। पाकिस्तानी वफ़द ने इलाकाई राब्ता, ज़राअत, सनअत, सियाहत, हुनरमंदाना तरबियत, तवानाई और माहौलियात के शोबों में ताउन की अहमियत को उजागर किया। इलाकाई राब्ता, लॉजिस्टिक, ज़राअत और सियाहत से मुतल्लिक 3 पैनल सेशन हुए। पाकिस्तानी मंदोबीन ने इन सेशंस में तकारीर की। पाकिस्तानी वफ़द ने शबीर अली बजरानी, वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट सिंध, वज़ीर आला सिंध के मुआमले खुसूसी कासिम नवीद, वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए PHA और सियाहत आसिफ महमूद, तैमूर मसूद मेंबर पंजाब असम्बली, वसीक कयूम अब्बासी मेंबर पंजाब असम्बली और सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के मिनिस्टर ट्रेड नासिर हामिद शामिल थे। सऊदी अरब में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें ओहदेदारों और जयालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया।
तफसीलात के लिए देखते हैं रियाज से उमर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों का कहना था कि पीपल्स पार्टी हकीकी मायनों में सियासी और जमहूरी जमात है, जिसने हमेशा मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने और तमाम तबकात को यकसा हकूक फराहम करने की आवाज़ बुलंद की है। मुकर्रीन का कहना था कि PYO का हर नौजवान पीपल्स पार्टी का हर अव्वल दस्ता है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था, सऊदी अरब में भुट्टो अज़म के प्रचार के अलावा नौजवानों को मुतहरक और फ़ाल किरदार अदा करने की जानब राग़ब करेंगे ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत हो और आइंदा इलेक्शन में कारकुन अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरब के सदर एहतशाम जावेद कोहली और जनरल सेक्रेटरी एजाज रहीम का कहना था कि मुल्क और बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी PTI सरकार की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं और इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल से दो चार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वादों के बरक्स मुल्की मईशत को बर्बाद कर चुके हैं, ताहम उन्हें चाहिए कि वो हुकूमत को छोड़कर इलेक्शन की तरफ बढ़ें ताकि मुल्क बेहतरी की जानब जा सके। तकरीब से मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट कल्चरल विंग के सदर काजी इसहाक मेमन, सदर PYO रियाज करीबुल्लाह खान, हाजी ताहिर, हदायतुल्लाह, सफीर हैदर, मोहम्मद नईम, मुदस्सर रफीक समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। उमर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब।